Good morning students and welcome. Today we are going to start lesson number 2.2, the worth of a fabric. Worth means the value of a fabric. Tiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. Tirukural is the book of his teaching. It is greatly loved and respected even today. Okay, in this lesson we are going to talk about the great Tamil poet. He is also a saint. Its name is Tiruvalluvar. Okay. Tiruvalluvar was a great Tamil saint poet. He was a poet 2000 years back. Tirukural is the book of his teaching. The book what he has written is called as Tirukural. Tiruvalluvar was a textile weaver. He wove beautiful fabrics and sarees and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. In this paragraph it is mentioned about the Tiruvalluvar who was a textile weaver. मतलब textile weaver मतलब जो कपड़े बनाता है, कपड़े साड़ियाँ वगैरह बनाता, कपड़ा बनाता है, is called as a textile weaver. He वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज मतलब वो बहुत खूबसूरत कपड़े वगैरह बनाते थे और साड़ीज वगैरह बना के मार्केट में सेल करते थे. पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री, नेवर यूज बैड वर्ड्स, नेवर शाउटेड एट एनीवन. वो कभी भी किसी को चिल्लाते नहीं थे, किसी को वो अपशब्द निकालते नहीं, गालियाँ वगैरह नहीं देते थे और ना ही कभी किसी के ऊपर चिल्लाया या गुस्से हुए. In the same town, there lived a rich young man. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. In the same town where the Tiruvalluvar stayed, there lived a rich young man. एक अमीर जवान आदमी रहते थे. He wasted most of his time roaming around with his friends. उसके वक्त वो क्या करता था, अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमता फिरता, टाइम ऐसा बर्बाद करता था, वेस्ट करता था. नेवर वर्क एंड नथिंग. ही वाज जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर विथ हिज फ्रेंड्स. दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल. और इनका काम क्या था, दूसरों का मजाक उड़ाना. वो और उसके दोस्त हमेशा दूसरे का मजाक उड़ाते थे, दूसरे को गुस्सा दिलाने में का काम करते थे. आई डोंट बिलीव दैट पीपल से अबाउट दिस Valluvar, said the young man one day. I'm sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. Now what did this rich young man decided one day? वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, that he will make Tiruvalluvar get angry. सब लोग उनके बारे में बोलते थे कि Tiruvalluvar को गुस्सा नहीं था, don't get angry, don't shout at anybody, never use the bad words. So when he came to know all these things, he said, the rich young man said, he will try to make him angry so that he will lose his temper and he will shout at him. तो ऐसा डिसाइड करते हैं वो और उसके दोस्त. So the arrogant young man approached Tiruvalluvar in the market and picked up the beautiful piece of fabric. Arrogant हम लोग बोल सकते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते, अपनी बात पे अड़े रहते और अजीब तरह से बिहेव करते. That types of people are arrogant. So the arrogant young man approached मतलब Tiruvalluvar से मिलने गए in the market and picked up a beautiful piece of fabric. Now he goes to Tiruvalluvar in the market and get a fabric from his shop. How much does this whole fabric cost? He asked. 8 coins, the saint named the price. The young man unfolded the fabric and tore it into two. What is the price of this piece now? Now see over here the picture. This is Tiruvalluvar and this is a rich young man and that is his friend. So one day what happened? This rich young man goes to Tiruvalluvar to make him angry. So what he does, he pick up one of the fabric from here. यहाँ से एक कपड़ा उठाता है, उससे पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है. तो Tiruvalluvar says it is 8 coins. Okay. Then what he does, वो कपड़े उठाते हैं, इस tear into 2 pieces, उसको 2 हिस्से में बांट देते हैं. And then he asks, now what is the cost of this cloth? एक कपड़े को निकाल के फाड़ने के बाद उसकी कीमत पूछ रहे. Then he says 4 coins. Let's see here.
4 coins, the sage answered politely. Now उन्होंने बोले, थिरुवलर ने बोले 4 coins, बिकॉज उसको डिवाइड किया, 2 हिस्सों में बराबर उन्होंने फाड़ दिया उस रिच हैंगमैन ने, तो इसीलिए वो बोले 4 coins, अब एक पीस का 4 coins होगा. The youth was taken aback. Why doesn't the man get angry? He thought, and he then tore the half pieces into half again. ना अभी अच्छे खासे ब्यूटीफुल कपड़े को उन्होंने फाड़ दिया था. नॉर्मली क्या होगा, हम लोग गुस्सा हो जाते और उस पर चिल्ला देते, बट थिरुवलर डिडंट से अ सिंगल वर्ड. वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, सिर्फ जब अमाउंट पूछा गया ही सेड दिस. नाउ ही वाज शॉक्ड टू सी दैट व्हाई डिडंट ही गेट एंग्री. एक अच्छा कपड़े को उसने फाड़ के 2 टुकड़े में बांट दिया था. तो थॉट व्हाई दिस मैन इज नॉट गेटिंग एंग्री. सो अगेन व्हाट ही डिड, अगेन ही टोर दैट फैब्रिक इनटू 2 more pieces. फिर से उन कपड़ों को और छोटे पीस में फाड़ दिए, उन्होंने काट दिए. एंड नाउ 2 coins was the answer. उसके बाद फिर से वो पूछता है कि अभी इसकी कीमत कितनी होगी. He says 2 coins. Now it was a young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half again and again, saying, "Now what is the price?" Now the young man got agitated. मतलब वो ये हो गया, इरिटेट हो गए कि वो गुस्सा दिलाने के, थिरुवलर को गुस्सा दिलाने के लिए वो कपड़ों को फाड़ रहे. अब थिरुवलर कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे अपना, ना तो गुस्सा हो रहे, ना कुछ बोल रहे, डांट रहे, कुछ नहीं कर रहे. तो अभी ये देख के उसको दैट यूथ रिच यंग मैन गॉट एंग्री. वो इम्पेशेंट हो गए, वो बहुत उतावला हो गए उनको गुस्सा दिलाने में, और वो चाहता था कि उससे थिरुवलर को गुस्सा दिलाए. तो व्हाट ही वांटेड, ही अगेन टेयर इनटू पीसेस स्मॉल पीसेस में वो कपड़े को फाड़ दिए. और बाद में उनसे फिर से उससे प्राइस पूछने लगे कि हाँ इसका प्राइस क्या है. Thiruvalar calmly went on reducing the price to half every time. At last, the fabric was reduced to rags. So Thiruvalar said, "It is said in a quiet tone, now this fabric has become worthless. I will not name any price for these rags." Now the rich youth, what did he do? He teared the fabric into pieces, into small, tiny pieces. So what did Thiruvalar say? कि अभी इसका प्राइस मैं क्या बताऊँ, ये कपड़े तो अभी किसी काम के नहीं है. इट इज़ नाउ वर्थलेस. कोई इस कपड़े का कुछ नहीं किया जा सकते. सो आई वोंट से द प्राइस. अभी मैं इसका प्राइस नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि इसका भी कोई मतलब ही नहीं है इनका छोटे छोटे चिंदी कपड़ों का. द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से, बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस, सो ही ऑफर्ड द टू पे 8 coins टू द सेम. फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवलर स्माइल्ड, बट ही रिफ्यूज्ड टू टेक द मनी. नाउ द यंग मैन डिड नॉट नो. अभी वो गुस्सा दिलाना चाहते थे थिरुवलर को, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू सो. वो गुस्सा दिलाने में नाकामयाब हो जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता. तो बट ही वॉज वेरी रिच एंड ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचनेस. तो उसने ऑफर किया थिरुवलर को वो फैब्रिक का अमाउंट 8 coins, बट थिरुवलर रिफ्यूज टू टेक दैट मनी. उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए. यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज़. इट हैज़ बिकम वर्थलेस. वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ. तो वो क्या बोलते हैं, यंग मैन, ये फैब्रिक अभी किसी काम का नहीं है, कोई इसे पहन नहीं सकते, अभी ये बेकार हो गया. डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड in a day. Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in this field worked hard for months through the sun and rain. He picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long, uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. My wife and I wore threads together, putting it beautiful design. We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it. तो now here we are, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है how the cloths are made. एक कपड़े को एक शेप दे, कपड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है. तो what it is said in the first line, do you know the fabric was not made, मतलब एक कपड़ा जो बनता है, whatever we get the ready-made cloth in, it is not made in a one day. It takes, अभी तो मशीन्स वगैरह हुए हैं जिससे फास्ट प्रोडक्शन होता है कपड़ों का, बट in ancient period it took days and days to get complete one cloth.
एक क्लॉथ करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए उसे काफ़ी वक्त चला जाता है। उसमें कितने लोग इस काम में शामिल रहते देखिए। द फार्मर हु इज़ दैट हु ग्रो द कॉटन, एक फार्मर जो है वो कॉटन को ग्रो करता है इन इस फील्ड। वर्क हार्ड फॉर मंथ्स, महीनों वो सूरज की रोशनी में, पानी की बरसात में वो काम करता है उस खेत में, वो कॉटन उगाने में। देन ही पिक अप द कॉटन फ्रॉम ईच बॉल, हर एक बॉल से देखिए दिस इज़ द कॉटन बॉल, यहाँ से इसमें से कॉटन निकाला जाता है उसको। देन इट इज़ गिवन टू स्पिनिंग, बाद में इसको स्पिन करने के लिए दिया जाता है, जहाँ पे उसको कॉटन को धागा के रूप दिया जाता है और एक धागा फॉर्म किया जाता है, सी। देन समवन हेल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड, इस कॉटन को एक लंबा सा धागा का रूप दिया जाता है जो दिखने में एक जैसा हो, उसको एक जैसा होना चाहिए लेवल उसकी थ्रेड की, कोई कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं, इट शुड बी यूनिफॉर्मली। द थ्रेड इज डाई, उसके बाद वो धागों को कलर में डिप करके उसको सुखाया जाता है, अलग अलग कलरों में डाल के डिप करके अलग अलग कलर दिए जाते हैं उस धागा को। माई वाइफ एंड आई ओ द थ्रेड्स टुगेदर, नाउ तिरुवल्लुवर एंड हिज वाइफ बोथ प्रिपेयर द थ्रेड, वो स्पिनिंग का काम करते, कॉटन से वो धागा बनाते दोनों मिलके। देन दे पुट दम इनटू ब्यूटीफुल डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन बनाते। सम डे, ये सोच के कि कोई आके इसको, एक कलर्स को, इस फैब्रिक को पसंद करेगा और लेके जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे उसे पहनते हुए। देन ऑल आवर वर्क वुड बी हैव बीन रिवॉर्डेड, जब कोई आपका काम को पसंद करता है, उसको सराहता है, फिर इन कपड़ों को पहनता है तो हमें खुशी होती है। तो बोलते हैं, तो अब ऐसा लगता है कि हम लोग ने जितनी भी मेहनत की, हम लोगों ने जो भी हो, फार्मर से लेके ये कपड़े बनाने तक जितने लोगों ने भी मेहनत की, मेहनत उनका रंग लाती है। When you destroyed all the love and the labor that went into its making, तो बोलते जब आपने इसे फाड़ दे, he says to the young man, when you tore this cloth into pieces, तब क्या हुआ, जितने लोगों ने इसके पीछे मेहनत की उनकी सारे मेहनत बर्बाद हो गए या खराब हो गए, उनका मेहनत का कोई मूल्य आपने ये नहीं किया, उसे बर्बाद कर दिया। मनी कैन नॉट बी ब्रिंग इट बैक, तो आप अगर पैसे देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मनी, वो जो आपने हम लोगों ने मेहनत की, वो मेहनत को ये किया जैसा नहीं होता है, वो आपने उसको मेहनत का व्हाट यू कैन से, आपने उसको मेहनत का मान नहीं रखा है। एंड डिडंट बॉदर फॉर ऑल दिस difficulty what they had taken to prepare this thread. The softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. जब तिरुवल्लुवर ने ये सारी बातें बताई तो what happened? The rich young man now he was ashamed of himself. उसे खुद को अपने पर गुस्सा आ रहा था और शर्म आ रही थी कि उसने बहुत गलत काम किया। And do you know, Tiruvalluvar went on to say, I can view another fabric like this, but our life is like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless action, it will be destroyed and you will not get it back again. Tiruvalluvar's words opened the young man's eyes. There and then he decided to give up his idleness and bad habits. तो लास्ट में तिरुवल्लुवर क्या बोलते हैं, आई कैन प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ फैब्रिक्स, में और भी इस तरह के कपड़े बना सकता हूँ, जो ऐसे जिसे आपने अभी फाड़ दिया, ऐसे काफ़ी सारे फैब्रिक से कपड़े मैं बना सकता, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी इन कपड़ों की जैसे ही है, पर उसे कभी सिया। इफ़ यू टेयर इट अपार्ट विथ एस्टी थॉटलेस एक्शन इट विल बी डिस्ट्रॉयड, अगर हम अपनी ज़िंदगी को बिना सोचे समझे किसी भी गलत व्यवहार या गलत चीज़ें अपनाते या गलत करते हैं तो क्या अपनी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, जिसे हम कभी वापस नहीं ले पाएंगे। तो ये कपड़े तो क्या है, दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, गलत चीज़ों में डाल रहे, गलत व्यसन आदतें डालते हैं या गलत काम करते हैं, इससे क्या होती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसे आप फिर से रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये बात उस यंग मैन की समझ में आ गए, व्हाट तिरुवल्लुवर वांटेड टू से, उनकी समझ में, उस यंग मैन की समझ में आ जाती है। अब वो उसके बाद से
आइडलनेस मतलब पहले तो क्या ऐसे घूम फिर के रोमिंग करता था, अपने दोस्तों के साथ टाइम वक्त बर्बाद करता, उसको एहसास हो जाता है कि वो गलती कर रहा है, उसको भी ऐसा कुछ काम ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ज़िंदगी अपनी निकालने के लिए कुछ काम करना चाहिए। एंड ही हैज़ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ हिज द लाइफ ही हैज़ गॉट। तो उसके बाद उन्होंने बुरी आदतें छोड़ दी। ओके, दिस इज़ व्हाट द लेसन टेल्स अस। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि हाउ वी गेट द क्लोथ, हाउ द फैब्रिक्स आर मेड। इवन आपको ये भी सीख मिलती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में या सही मोड़ दे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। इन फ्यूचर यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर आप ये नहीं समझते, अपने आप को बर्बाद कर रहे या गलत रास्ता अपनाते, तो वो ज़िंदगी बर्बाद होके रह जाएगी। वो ज़िंदगी भर के लिए आपको एक ऐसे नाम है आपका, ऐसे लोगों के सामने ऐसी छवि बना देती है कि लोग आपका तिरस्कार करने लगते हैं। तो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू बी अ गुड पर्सन। Okay, I have finished this lesson. I hope you got it. Here are some of the meanings. Ball, that it is shown over here. देखिए, spinning, carded, spun, rewarded and idleness. Idleness का मतलब laziness, ऐसा वक्त बर्बाद करना, यहाँ वहाँ पड़े रहना, घूमना फिरना. That is called laziness or idleness. Okay, bye. See you in the next lecture.